آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے 29 سالہ نوجوان سے کروانے والا ہوں جس نے اپنے کریئر کو متعدد مرتبہ تبدیل کیا ہے۔ پہلی مرتبہ CSS کا امتحان دیا تو اس میں فیل ہو گئے، لیکن پھر بھی ناکامی کو وجہ بنا کر اپنے حوصلے کو پست نہیں کیا، بلکہ دوسری مرتبہ بہتر تیاری کے ساتھ CSS میں کامیاب ہو کر فورن سروسز آف پاکستان میں بطور CSS افسر اپنی جگہ بنا لی۔ بہتر کی جو جستجو ہے یہی انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ آپ جتنی جگہوں پہ جا کے پریکٹس کریں، کیونکہ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ ہی کرتی ہے۔ پولیس میں بہت بہترین لوگ ہیں جن کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے، بہت سارے کرائمز کنٹرول ہیں۔ جو بلیک شیپس ہیں وہ تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، وہ چاہے پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، سیمی گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے، گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے، دے آر ایوری ویئر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے اور قابل لوگ بھی ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو آپ کا ملک چل بھی نہیں سکتا۔ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، کچھ پازیٹیوٹی آئی ہے۔ آئی ریئلی ہوپ کہ ابھی فارن سروس میں لوکیشن ہوئی ہے تو ایک بڑی مثبت جرنی انشاءاللہ یہ بھی رہے گی۔ جہاں تک انٹرویو کے تعلق ہے تو میں الحمدللہ جی انٹرویو کے ٹاپرز میں ہوں، ٹاپ 5 میں ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، بول بز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رخشان میر۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے 29 سالہ نوجوان سے کروانے والا ہوں جس نے اپنے کریئر کو متعدد مرتبہ تبدیل کیا ہے۔ IT میں گریجویشن کی، لیکن IT کی فیلڈ کو پرسو نہیں کیا۔ PPSC کا امتحان دے کر پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر بن گئے اور 4 سال تک گجرانوالہ ڈویژن میں بطور سب انسپیکٹر سرو کیا، لیکن علم حاصل کرنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی جستجو ان کے اندر برقرار رہی۔ پہلی مرتبہ CSS کا امتحان دیا تو اس میں فیل ہو گئے، لیکن پھر بھی ناکامی کو وجہ بنا کر اپنے حوصلے کو پست نہیں کیا، بلکہ دوسری مرتبہ بہتر تیاری کے ساتھ CSS میں اپیئر ہوئے اور دوسری مرتبہ CSS میں کامیاب ہو کر فورن سروسز آف پاکستان میں بطور CSS افسر اپنی جگہ بنا لی۔ حسن اعجاز گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک سب انسپیکٹر میں اور ایک CSS افسر میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے، رینکر افسر کی زندگی ایک CSS افسر کی زندگی سے کیسے مختلف ہوتی ہے، اور وہ نوجوان جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں، CSS کرنا چاہتے ہیں، انہیں کن ٹپس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے تو نوکری کے ساتھ CSS کیا ہے، تو کس طرح سے یہ کیا ہے۔ حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پہلے آپ نے IT میں گریجویشن کی، پھر PPSC اور پھر CSS، کیا وجہ تھی اس تبدیلی کی؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے ہم پہلے گفتگو بھی کر رہے تھے کہ مومن جو ہے جی وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، اور یہ جو بہتر کی جو جستجو ہے یہی انسان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ تو خواہ میرا ڈیسیژن IT میں جانے کا تھا، پولیس میں جانے کا تھا، یا فورن سروسز میں میری الوکیشن ہوئی ہے، تھرو آؤٹ ایک لرننگ کا پروسیس رہا ہے۔ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، کچھ پازیٹیوٹی آئی ہے۔ آئی ریئلی ہوپ کہ ابھی فارن سروس میں لوکیشن ہوئی ہے تو ایک بڑی مثبت جرنی انشاءاللہ یہ بھی رہے گی۔ تو یہ خوب سے خوب تر کی حصول کی جو جستجو ہے یہی ایک نوجوان کو آگے لے کے جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میں بھی اب یہ سارے جو ہے ایک لمبا سفر جو ہے وہ طے کیا۔ پاکستان میں جو نوجوان ہیں PPSC کے لیے بھی بڑی تگ و دو کرتے ہیں، خواب ہے ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی یہ سوچتے ہیں کہ PPSC کر کے پنجاب پولیس میں جائیں گے، اور CSS کرنا بھی الٹیمیٹلی یہاں پر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا خواب ہے۔ بنیادی طور پر کیا فرق ہے ایک رینکر افسر میں اور ایک CSS افسر میں، کیا ڈفرینس ہے؟ آپ ایک CSP آفیسر ہیں تو آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو یو آر سم ہاؤ میکنگ دا پالیسیز، یا آپ کہیں نہ کہیں ان کو آرڈر دے کے ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں۔ تو ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ ایک بندہ کام فیلڈ میں اٹ سیلف کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہا ہے، سپروائز کر رہا ہے۔ تو بنیادی ڈفرینس تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مقابلے کا آپ نے امتحان دیا، CSS پہلی مرتبہ فیل، دوسری مرتبہ کامیاب، اور PPSC کا بھی آپ نے امتحان دیا۔ کتنا مشکل ہے CSS PPSC کی نسبت؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، کتنا پڑھنا پڑتا ہے اس کا؟ آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، آپ کی رائے قائم ہوتی ہے اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کے بارے میں، نیشنل ایشوز کے اوپر، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر۔ آپ کسی ریڈی والے سے بھی جا کے پوچھیں گے، لیٹس سے یوکرین کا کرائسس چل رہا ہے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اوپینین دے دے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے کمرے میں خود کو بند کر لیا ہے، 3-4 مہینے 6 مہینے 1 سال وہ لگا رہا ہے، اور دین اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ مقابلے کے امتحان دے پائے۔ یہ آپ کا عمر بھر کا امتحان ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو پالش کتنے ٹائم میں کر لیتے ہیں، CSS اسپیسیفک تیاری کتنے ٹائم میں کرتے ہیں، اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن۔ 3 مہینے بھی لوگ کرتے ہیں، 4-6 مہینے میں بھی کرتے ہیں، میکسیمم 1 سال۔ تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے اکارڈنگلی۔ تو میری جو تیاری تھی وہ غالباً 3-4 ماہ کی پراپر جو تھی جو میں نے کی ہے، اس کے علاوہ پھر میں نوکری کے ساتھ ساتھ چلاتا رہوں معاملات اپنے۔ آپ کے پاس چونکہ دونوں تجربات ہیں، سب انسپیکٹر آپ گجرانوالہ جیسے علاقے میں رہے ہیں، 4 سال آپ نے وہاں پہ بطور سب انسپیکٹر نوکری کی ہے، اور آپ فورن سروسز میں آپ بطور آفیسر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک رینکر جو افسر ہے اس کے مائنڈ سیٹ میں اور CSS کا امتحان دے کر افسر بننے والے ایک کینڈیڈیٹ میں
बहुत फ़र्क होता है, वो और तरीके से चीज़ों को सोचता है, एग्जीक्यूट करता है, जो रैंकर अफसर है डिफरेंट तरीके से चीज़ों को, सिनेरियोज को देख रहा होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, मैं तो उसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। जो बंदा ग्रास रूट से आ रहा है ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, जैसे आप मीडिया में हैं, तो एक बंदा जो रिपोर्टिंग से आके एंकरशिप पे आ रहा है, ही इज़ मच अवेयर, मच मैच्योर देन अदर कोलीग्स ऑफिस इन हिज ऑफिस। सेम गोज़ विद अदर डिपार्टमेंट्स। मैंने ग्रास रूट से काम किया हुआ है, तो मुझे एक्चुअली पता है कि मसाइल क्या है। ऑल दो कि मेरी लोकेशन फॉरेन सर्विस में हुई है, लेकिन आपका जो एक रैंकर ऑफिसर होता है या जो ग्रास रूट पे काम कर रहा होता है, उसका हाथ अवाम की नब्ज़ पे होता है, वो चीज़ों को बड़ा बेहतर से समझ रहा होता है। तो मेरी तो वो अप्रोच हमेशा से रही है, ग्लास हाफ फुल वाली रही है। आप हाफ एम्प्टी देखें तो फिर आप यकीनन ये कहेंगे कि पता नहीं रैंकर और तरीके से देख रहे हैं, या जो CSPs हैं जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो और तरीके से देख रहे हैं। तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड हिज नेचर। बहुत सारे रैंकर ऑफिसर बहुत काबिल हैं, बहुत सारे CSP ऑफिसर जो हैं नहीं, नालायक तो नहीं है, लेकिन वो भी मतलब आप देखेंगे, आपको बराबरी पे नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे रैंकर ऑफिसर्स के। तो ये इंसान पे डिपेंड कर रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी इम्तिहान की बुनियाद पर जज कर सकते हैं कि रैंकर बेहतर है या CSP ऑफिसर बेहतर है। आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नौकरी अब चूँकि एक टफ नौकरी है, थाने में आप बैठे हुए हैं और मसाइल ही मसाइल हैं, उसके साथ साथ आपने CSS की तैयारी की। कब पढ़ते थे, कब सोते थे, कब नौकरी करते थे, क्या जर्नी थी वो? अच्छा जी, मैंने तो सारी की सारी अपनी ट्रेनिंग्स भी की हैं, कहते हैं ना, रेड्स भी की हैं, परेड्स भी की हैं, और 1 साल हमारा जो ट्रेनिंग का होता है सिहाला वगैरह में, वो भी हमने गुजारा। फिर मैं 23 मार्च की परेड में भी मैंने शिरकत की 2 बार, उस कॉन्टिजेंट का भी हम हिस्सा थे। तो वो जो फिज़िकल रगड़ा है वो भी हमने बर्दाश्त किया है। फिर फील्ड में आकर जो हमारे जितने ट्रेड कोर्सेज होते हैं, ABC कोर्सेज हैं, वो भी मैंने किए हैं। फिर थाने की नौकरी भी मैंने की है। तो उसमें पेट्रोलिंग भी आप कर रहे हैं, आप पिकेटिंग भी कर रहे हैं, आप स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलें। जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है तो इट वेरीज फ्रॉम डे टू डे। किसी दिन आपको वक्त ज़्यादा मिल गया, किसी दिन कम मिल गया। लेट्स से अब मैं पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो 8-10 घंटे की आपकी ड्यूटी है। तो आजकल हर बंदे ने कान में पॉड लगाए हुए, हैंड फ्री लगाए हुए। तो इट इज़ अप टू यू कि आपने उन लम्हात में कि जब आप फ्री हैं, गश्त तो हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, और कोई कॉल अगर नहीं आई हुई है, तो आपने गाने सुनने हैं, आपने न्यूज़ सुननी है, कोई अच्छा टॉक शो देखना है, ये आपकी तरजीहात पे। आपने कितनी एकेडमीज ज्वाइन की? तो मैंने जी कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। अलबत्ता मैंने जो मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए ज़रूर मैंने ज्वाइन की थी, और इंटरव्यू की जो है प्रैक्टिस के लिए। तो उसका तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप जितनी जगहों पे जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट ही करती है। जहाँ तक आपकी तैयारी का ताल्लुक है तो वो तो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है, आपकी अपनी इंटेंशंस पे डिपेंड कर रहा है कि हाउ सिंसियर यू आर, कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इफ़ यू आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, यू कैन डू इट। You don't need an academy for that, but once again it varies from person to person. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। तो यकीनन अकेडमीज़ का एक रोल है भी, हम उसको निगेट नहीं कर सकते कि सिरे से कोई रोल ही नहीं है। एक आम ये शायद अब गलतफहमी है या ये दुरुस्त बात है, इसको तो आप भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, नाजरीन को भी। कहा जाता है कि जी इसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, जो फ्लुएंट है बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बड़े फेयर चांसेस हैं कि वो CSS कर जाए। हालांकि मैंने पर्सनली भी देखा है कि वो नौजवान जिनकी अंग्रेज़ी गुजारे लायक है, उन्होंने भी कामयाबी उसमें हासिल की, और बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वाले या शुरू से एक इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग या कॉलेज में जो गए, उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इंग्लिश का कितना अमल दखल है इसमें? जी, अंग्रेज़ी का अमल दखल तो ज़रूर है, लेकिन इतना ही है कि आपसे मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ऐसे का पर्चा है, 10 मौजू होते हैं, तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उन 10 में से आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर कोई ग्रामेटिकल ब्लंडर्स ना मारे हों, और आपने अपनी एक राय एहसन अंदाज में पेश की, आपके कुछ एविडेंसेस आपने दिए हैं और आपने उसको कन्विंस कर लिया, तो ही विल डेफिनेटली पास यू। जब आप उसको इम्प्रेस करना शुरू कर देंगे, हाई फाई अंग्रेज़ी लिखने की कोशिश कर देंगे, मैं कहूँ कि जी मेरी अंग्रेज़ी उस मयार की क्यों नहीं है जो डॉन के एडिटोरियल की है, फिर तो डेफिनेटली मसाइल हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का कॉम्पिटिशन है, ये तो आपकी नॉलेज भी है, स्ट्रक्चर भी है, और बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए। तो जितनी चाहिए होती है उतनी होती है लोगों की, जो पास हो जाती हैं इसलिए पास होते हैं। इंटरव्यू में कैसे कामयाबी हासिल की, और जब पहले फेल हुए तब आपके अंदर क्या खामियां बाकी थी इम्तिहान में या फिर इंटरव्यू में, और जब दूसरी मर्तबा अपीयर हुए तो आपने क्या उसके अंदर तब्दीली लेके आए अपने तैयारी में और अपने कॉन्फिडेंस में? अच्छा, पहली बार फेल पे आ जाए तो वो तो जिस तरह हमारी कौमी बीमारी है ना कि काम आपने करना हो तो आप कहते हैं पहले चेक कर लेने हैं, तो वो चेकिंग में ही हमारी पहली अटैम्प्ट तो इसी तरह बस निकल गई। तो टेक्निकली तो देखा जाए तो मैंने पढ़ के तो इसी बार अटैम्प्ट दी और मेरा क्लियर हो गया। जहाँ तक इंटरव्यू के ताल्लुक है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी इंटरव्यू के टॉपर्स में हूँ, टॉप 5 में मैं हूँ। तो उसमें भी फिर आप का कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका नॉलेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से आप हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि इंतहाई कॉम्पिटेंट लोग आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं जिन्होंने सारी सर्विस की है,
एम्बेसडर लेवल पे या वो चीफ सेक्रेटरीज रहे होते हैं, तो वो आपकी पूरी की पूरी शख्सियत देख रहे होते हैं। वो कोई क्विज कंपटीशन नहीं चल रहा कि 20 सवाल पूछें तो 20 के 20 आ गए तो आपको पास कर देंगे या टॉपर्स मिल जाएंगे। तो गोया पूरी आपकी शख्सियत देखी जा रही होती है। तो आई गेस कुछ ना कुछ उनको अच्छा नज़र आ ही गया होगा जो टॉप स्लॉट्स मिले हैं मुझे। अच्छा हसन साहब, लोगों को तो बहुत खौफ आता है थाने जाने से, और एक आम तासुर यही है कि पुलिस से अगर आपने कोई भी काम लेना है, एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है या FIR करवानी है, तो उसके लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। ये वो तासुर है जो लोगों में पाया जाता है। इसकी तरदीद तो आप ही कर सकते हैं कि अब ऐसा है या नहीं है। तो जब आप सब इंस्पेक्टर थे और सारे सिस्टम को देख रहे थे, तो ऐसी ऑफर्स तो होती होंगी, या ये कल्चर जो बेसिक पाकिस्तान में थाना कल्चर है उसको किस तरह से डील किया आप? देखिए जी, जो ब्लैक शीप्स हैं वो तो हर जगह पाई जाती हैं। वो चाहे प्राइवेट सेटअप है, सेमी गवर्नमेंट का सेटअप है, गवर्नमेंट का सेटअप है, दे आर एवरीवेयर। लेकिन इसके साथ साथ अच्छे और काबिल लोग भी हैं, और अगर वो ना हो तो आपका मुल्क चल भी नहीं सकता। और पुलिस भी इस चीज़ से कुछ जुदा नहीं है। पुलिस में बहुत बेहतरीन लोग हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट चल रहा है, बहुत सारे क्राइम्स कंट्रोल हैं। आज अगर आप पुलिस को कहें कि आप अपना काम छोड़ दें तो लूट मार का बाजार गर्म हो जाएगा। तो पुलिस का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है, एक डेटरेंस फैक्टर तो है तमाम मसाइल के बावजूद। मैं ये नहीं कह रहा कि इश्यूज़ हैं नहीं और इम्प्रूवमेंट के लिए रूम नहीं है। अब जहाँ तक आपने बात की कि वो इश्यूज़ आपके चल रहे हैं या कोई ऑफर्स होती हैं या लोग कह रहे हैं कि जनाब स्मूथली FIRs नहीं हो पाती, लोगों का तासुर तो ये है ना, थाने जाएंगे तो साथ पैसे भी लेके जाएंगे तो काम होगा। नहीं ऐसा नहीं है। FIR का हसूल तो अब तो बड़ा इजी हो चुका है। आपके फ्रंट डेस्क असिस्टेंट्स आ चुके हैं, पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियाँ जो यूनिफॉर्म वाले तो नहीं हैं, सिविल नहीं हैं। आप जाएं जाके सिंपली जो भी आपका मैटर है, आप जो बेसिक आपके रोज़मर्रा के मामला है उसके लिए जाके सिंपल एप्लीकेशन करें, वो आपकी एप्लीकेशन दर्द हो जाएगी। FIR भी आपकी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे हीनस क्राइम्स होते हैं कि जिसमें यकीनन लोग झूठी दरखास्तें भी तो ले आते हैं, तो वो क्रॉस चेक जब तक नहीं होती तब तक FIR नहीं की जाती, तो वो उस हद तक डिले आता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू मैंने फेस नहीं किया। बाकी अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। जनरली मेरा जो पुलिस का एक्सपीरियंस है बड़ा पॉजिटिव रहा है, ख़ास तौर पे अब के जब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू यंग लड़के और लड़कियां जो बड़े हाईली एजुकेटेड हैं, MPhil भी हैं, रिसेंटली एक PhD भी एक हमारे सीनियर ने की है केमिस्ट्री के अंदर। तो इस लेवल के जब पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं तो और कुछ ना हो तो एटलीस्ट जो आपकी वो पब्लिक डीलिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लोगों की बड़ी अपनायत सी महसूस होती है। वरना तो एक टाइम था कि लोग थाने में जाना बुला लें तो उनको डर लग जाता था कि यार हमें बुला लिए, पता नहीं क्या मसला है। हालांकि आप अपने काम से जाते थे, आप हक पे होते थे, फिर भी आपको डर खौफ होता था कि मुझे ही ना पकड़ लें। लेकिन अब वो जो कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव जो है हमारा चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बाद काफ़ी हद तक एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो गया पुलिस स्टेशन का। तो लोगों को अब डर खौफ नहीं है। उर्दू मीडियम अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, तो हर ज़ुबान बोलने वाला पुलिस अफसर थाने में बैठा अच्छा, सोसाइटल बिहेवियर तो चेंज हुआ होगा आपके साथ जब सब इंस्पेक्टर बने तब भी, और फिर आप CS अफसर बने तब भी। कितना फ़र्क आया लोगों का आपके साथ, जो रवैया है किस हद तक तब्दील हुआ? लेकिन जो दोस्त आपके हैं ना, उनके लिए तो आप ना कभी अफसर होते हैं ना आपको होना चाहिए, वो वैसे ही रहते हैं। आपके जो मुखलिस रिश्तेदार हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, हमेशा आपके खैर ख्वाह रहते हैं। बाकी चढ़ते सूरज को सलाम अज़ल से हो रहा है, अब तक होता रहेगा। ठीक है, वो क्या टिप्स हैं जिन पर अमल करके एक यंग ग्रेजुएट CSS ऑफिसर बन सकता है? क्या उसको अपना डे प्लान बनाना होगा, क्या करना है उसने? 3 चीज़ें जी। सबसे पहले तो ये आपकी नीयत खालिस हो कि मैंने करना है। दूसरी ये है कि एज़ पर योर कैपेसिटी एंड टाइम आप टाइम टेबल बना के चीज़ें सिलेबस को अपना डिवाइड कर लें। और तीसरी ये है कि आपने रिवीजन्स विद रिटन प्रैक्टिस आपने करनी है। तो मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस हो, प्रॉपर रिवीजन्स हो, बाकायदा तरतीब दी के चीज़ें लेके चल रहे हैं और खुलूस नीयत से कर रहे हैं, अल्लाह ताला पे यकीन है, ख़ुद पे यकीन है, तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हसन एजाज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी दिलचस्प इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। रुखसान मीर को दीजिए बोलबाज़ से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।